I will teach you chapter 6 of class 5. This is the first part of chapter. The name of chapter is The Land of Dense Forest. In this part, I will explain 5 topics. The topics are location of DRC, the land, climate that is found in DRC, vegetation and wildlife. Students, as the heading shows that in this chapter हम लोग एक ऐसे कंट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है. The name of country is the Democratic Republic of the Congo. Students, it is an African country. यह एक अफ्रीकन कंट्री है and DRC is also called DRC in short. This country lies in equatorial region. Students, you can see in map 6.1 that equatorial region lies in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This region has hot and humid climate throughout the year and DRC lies in this region. प्रीवियस चैप्टर में भी स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के रीजन को इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं और यहाँ पे सालों भर बारिश होती रहती है और यहाँ का एटमॉस्फेयर जो होता है वो वेट एंड ह्यूमिड होता है. नाउ स्टूडेंट्स, about the location of DRC, our first point is the location. DRC, अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखें तो इट इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड इक्वेटर passes through the northern part of the country. In figure 6.2 you can understand it clearly. What is equator? तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन that divides the earth into two equal halves. Students, DRC is the second largest country of Africa after Algeria. It means Algeria is the first largest country. Algeria is the first largest country and DRC is the second largest country of Africa continent. Students, in map 6.2 you can see the boundary of DRC. DRC का इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो पूरा ये जो एरिया है ये 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है. लाख स्क्वायर किलोमीटर ये पूरा एरिया जो है DRC का वो 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है एंड इट्स बाउंड्री इज DRC shares its boundary with 9 neighboring countries. So the neighboring countries of DRC are Tanzania, Rwanda, Uganda, South Sudan, Central African Republic, Republic of Congo, Burundi, Angola and Zambia. Students, our next topic is land. Major landforms are found in DRC. यहाँ पे रिवर्स पाए जाते हैं, माउंटेन्स, लेक्स और प्लेट्यूज भी पाए जाते हैं. River Congo, the second longest river of Africa, flow through this country. This is the highway of Central Africa. River Congo is the highway of Central Africa. Why, students? Because most of the transportation and traveling is done through this river. River Congo जो है वो सेंट्रल अफ्रीका का हाईवे कहलाता है
क्योंकि ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग जो है वो रिवर कॉन्गो के थ्रू किया जाता है। द कंट्री लाइज इन द सेंटर ऑफ कॉन्गो रिवर बेसिन। व्हाट इज कॉन्गो रिवर बेसिन स्टूडेंट? सपोज this is Congo river and the land through which this river passes, this area is called Congo river this area is called Congo river basin। तो कॉन्गो रिवर बेसिन के सेंटर में DRC लाई करता है और यह एक लो लेइंग एरिया है। व्हाट इज लो लेइंग एरिया स्टूडेंट्स? वैसा लैंड जिसका एल्टीट्यूड बहुत कम होता है, मीन्स उसकी ऊंचाई सी लेवल से बहुत कम होती है, तो वैसे लैंड को लो लेइंग एरिया बोला जाता है। दिस लो लेइंग एरिया इज कवर्ड विथ रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट मीन्स वैसा फॉरेस्ट जहाँ पे सालों भर बारिश होती है, तो चूंकि यह इक्वेटोरियल रीजन में स्थित है इस वजह से यहाँ पे सालों भर बारिश होती रहती है। नाउ स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द DRC माउंट रिवेंजरी रेंज लाइज। इसके नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन रिवेंजरी रेंज है and Mount Margarita is the highest peak of mountain Rwenzori range। जिस तरह से हिमालयन रेंज का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, ठीक उसी तरह से माउंट मार्गेरिटा माउंट रिवेंजरी रेंज का हाईएस्ट पीक है। The country has 4 major lakes also। DRC में 4 मेजर लेक्स हैं। What are these students? Albert, Ibert, Kivu and Tanganyika are the major lakes of DRC। These lakes lie along the eastern boundary of DRC। ये सारे lakes जो हैं वो DRC के ईस्टर्न बाउंड्री पे पाए जाते हैं। Now our next topic is climate। DRC में किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है? तो यहाँ चूंकि यह इक्वेटोरियल रीजन में है, इसलिए यहाँ पे हॉट एंड रेनी क्लाइमेट होता है। ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई होती है, मीन्स कि यहाँ पे क्लाइमेट में मॉइस्चर का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पीपल को स्वेटिंग होती है और लोग चिपचिपा एंड अनकंफर्टेबल फील करते हैं। मॉर्निंग्स आर जनरली प्लीजेंट। सुबह का समय वहाँ पे सुहाना होता है, बट एट आफ्टरनून द टेम्परेचर राइजेस एंड द हीट इज अनबियरेबल। दोपहर होते होते गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है, बट ग्रेजुअली क्लाउड्स फॉर्म एंड रिजल्टिंग इन हेवी रेनफॉल। बारिश भी होती है वहाँ पे दोपहर में, इस वजह से इवनिंग एंड नाइट्स जो होते हैं वो कूल एंड कंफर्टेबल होते हैं। Our next topic is vegetation। What do you mean by vegetation students? तो vegetation means किसी एरिया में किस तरह का plants and trees पाया जाता है। DRC में hot and humid climate है, इस वजह से यहाँ पे variety of plants and trees पाए जाते हैं and they grow very fast। The forest have a variety of trees, but most of the trees are tall and they form canopy at the top। What is canopy students? Canopy is a roof-like structure that is formed by the branches and leaves of the trees। Canopy एक छत के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वह बना होता है ट्रीज के ब्रांचेस एंड लीव्स से। The canopy is so dense that even sunlight can
फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। द फॉरेस्ट इज सो डेंस एंड डार्क दैट nobody can pass through it and it is very difficult to pass through the forest. The forests are rich in wildlife means कि DRC के फॉरेस्ट में बहुत तरह के जानवर पाए जाते हैं, जिसमें गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी, बोनोबोज एंड बेबून्स होते हैं। फॉरेस्ट के मार्सी लैंड में हिप्पोपोटामस, एलिफेंट एंड राइनोसोरस पाए जाते हैं। मार्सी लैंड क्या होता है स्टूडेंट्स? दलदली इलाका मीन्स जहाँ पे कीचड़ होता है उस जगह को मार्सी लैंड बोलते हैं। DRC के ग्रासलैंड में लॉयन, चीता, हाइनास एंड बफेलोज पाए जाते हैं। The rivers and lakes of DRC are full with crocodile, alligators and fishes. DRC फॉरेस्ट के एक पार्ट को उत्तरी फॉरेस्ट बोलते हैं। उत्तरी फॉरेस्ट। In उत्तरी फॉरेस्ट स्टूडेंट, two types of animals are found, that is okapis and antelopes. तो okapi जो एनिमल होता है उसको फॉरेस्ट जिराफ भी बोलते हैं, और एंटीलोप एक ऐसा एनिमल है जो कि डियर से रिजेंबल करता है, बहुत कुछ डियर से मिलता जुलता यह एनिमल होता है। ओकापी एक ऐसा एनिमल है जो उत्तरी फॉरेस्ट में पाया जाता है और ये DRC की एक विशेषता है। बिसाइड दीज स्टूडेंट्स, लॉयंस, चीता, हाइंस, जिराफ एंड बफेलोज भी यहाँ के ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। इसके अलावा पेलिकन, डक, ऑल एंड डक्स ये सारे बर्ड्स DRC में पाए जाते हैं। So this is the end of part 1 students. Thank you.